Hey class 4, in today's video we will do this exercise of chapter 4 Animal Habitat and Our Food from your science book of Edward series, and we will just do the book exercise. Okay, and shall we start? Okay, first of all we have given the true and false to check our progress. Some desert animals go into long sleep during the hot summers. That's true. That's called the estivation. All aquatic animals have gills to help them breathe. Yet, no, some of them has gills and some of them have lungs. Camels have thick fur on their body to keep them warm. False. फर नहीं होता है कैमल की बॉडी पे. टेल्स ऑल्सो हेल्प आर्बोरियल. आर्बोरियल मीन्स ट्री हगर्स, जो ट्री पर रहते हैं. एनिमल्स टू बैलेंस देयर बॉडी. ट्रू. हैबिटेट इज द नेचुरल होम फॉर एनिमल्स. True. Next. Okay, these are just the unscrambled board. I had already done this. Take a screenshot and you can write. Now, turning to the book exercise. Now, yeah. Circle the correct answer. It is called the natural home of an animal. Habitat. They come up to the surface of water to breathe. Whales. These animals use their tails to balance their body. Arboreal. ओके, बंदर जो होता है ना, उसकी वो आर्बोरियल होता है. उसकी जो टेल होती है ना, वो टेल से भी अटैच हो सकता है ट्री को, है ना, अपनी टेल से भी लटक जाता है. सो देयर टेल्स वर पावरफुल एंड दे हेल्प देम टू बैलेंस देयर बॉडी. विच ऑफ दीज एनिमल्स हैव अ थिक layer of fat under their skin? Walrus, because it's a polar animal, that's why. Which of these is an extinct animal? Extinct मतलब बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं. Dinosaurs. Next. Hibernation is the inactivity shown by some animals during winters. Animals that live in water are called aquatic. Aqua means water होता है ना, इसलिए. Aerian animals have light and hollow bones. That's why they can fly. Animals that are no longer seen on the earth are called extinct. Dinosaurs is extinct, and mammoth. Penguin, you can match them with the blubber. They जो fat की layer होती है उसको कहते हैं. Leaf insect, camouflage. कैमोफ्लेज मतलब अपने आप को छुपा लेता है, एकदम ब्लेंड कर देता है एनवायरनमेंट के साथ. और कैमोफ्लेज हम चैमेलियन में भी देख सकते हैं. स्क्वायरल्स, दे आर आर्बोरियल. टर्टल्स, दे हैव पैडल्स to swim. Adjustments. Okay, now you have to give one word answer. Adjustment to suit the conditions of one's territory. Adaptations. Animals that live mostly on land. Terrestrial. Habitat in which aquatic animals live. Aquatic animals are rivers, ponds. These are the winter movements of birds to the warmer places. Migration. Animals no longer seen on the earth. Extinct. देख नहीं सकते अपन उनको, तो वो एक्सटिंट हो गए ना. एग्जिट से हम एक्सटेंट याद रख सकते हैं ना. एग्जिट मतलब चले जाना. नाउ कैमल्स हैव ब्रॉड फीट सो दैट दे डू नॉट श्रिंक इन द सैंड. पैर बहुत ब्रॉड होते हैं, चौड़े होते हैं पैर बहुत, तो वो इजीली श्रिंक नहीं करते हैं मिट्टी में. नेक्स्ट. Aquatic animals have fins and paddles to help them swim in water. एम्फीबियंस. अच्छा, एम्फीबियंस जो ज़मीन पे भी रह जाते हैं, लैंड पे भी रहते हैं ना. ओ, ये तो दोनों सेम हो गए. जो लैंड पे भी रह सकते हैं, वाटर में भी रह सकते हैं, वो एम्फीबियंस होते हैं. उनकी जो फीट है वो वेब्ड होती हैं. दैट अनेबल देम टू स्विम इन वाटर. इस फीट की वजह से वो पानी में भी रह सकते हैं, तैर सकते हैं. क्रैब्स, टर्टल, ऑक्टोपस एंड व्हेल्स आर एक्वाटिक. एक्वा मीन्स वाटर. All the animals adapt themselves to the conditions of their habitat. Adapt. Now we will do the question answers, and I had already written them for you kids. So, yes, list the different animal habitat. Different animal habitat are terrestrial, ज़मीन ना, जिसमें सारे आ जाते हैं, deserts, plains, plateaus, everything. Aquatic, पानी. Arboreal, जो mainly trees पर रहते हैं ना. Arboreal, they are related to air, but we can say they live on the trees. Mention a special feature of bones of the aerial animal. अच्छा, जो bones होती है ना, हड्डियाँ, वो बहुत हल्की होती है. चिड़िया की जो भी birds होते हैं, उनके bones बहुत hollow होती है और light weighted होती है, इस वजह से वो उड़ पाते हैं. The bones of aerial animals are light and hollow so that they can easily fly.
Why do some birds migrate during winters? Some birds migrate during winters. इतना तो क्वेश्चन में से ही है. To warmer places to look for food. Okay? To warmer places पे जाते हैं ताकि उनको warmth तो मिल ही रही है warm place पे और food भी मिल जाता है ना. Next, camouflage. Seen around you. Camouflage क्या होता है? कुछ एनिमल्स, यहाँ देखो आपकी बुक में, कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपने आप को पूरी तरह ब्लेंड कर लेते हैं. ये देखो, ये चैमेलियन है, इसने अपने आप को पूरा ब्लेंड कर लिया तो पता ही नहीं चल रहा है पत्ती कहाँ है. ये लीफ इंसेक्ट है, ये बिल्कुल लीफ की तरह दिख रहा है. ये देखो, ये अपनी ये जो ट्री पर अगर बैठा हो तो हम इसको नहीं देख सकते, है ना. दैट्स वाई दिस इज़ कॉल्ड द कैमोफ्लेज. अपना कलर चेंज कर लेते हैं. सो वेयर डू यू कैन फाउंड कैमोफ्लेज? Their body color to match the color of their surroundings. We can found it in the chameleon, stick insect and leaf insect. Okay, this is your answer. Take a screenshot or whatever you like. Define the following. Habitat, a place where an animal or plant live. बहुत easy है ये तो, जहाँ रहते हैं वो habitat. Habitat is the natural home for all of an animal. एक natural home होता है हर animal का. One more thing I have to ask you children. In this situation of COVID, there is no need for you to get a tutor or tuition teacher. Just you can watch my video, speak along with me, and you can easily remember everything. Next is the hibernation. Hibernation मतलब सोना होता है, ठीक है, दिन के अंदर. So, लेकिन ये क्या है? Inactive हो जाना. इनएक्टिव होना मतलब एकदम लेजी से पड़े होते हैं. हाइबरनेशन इज़ द इनएक्टिविटी शोन बाय सम एनिमल्स ड्यूरिंग विंटर मंथ्स. अच्छा, विंटर्स में जो सोते हैं उसको हाइबरनेशन कहते हैं और समर में जो सोते हैं उसको एस्टिवेशन कहते हैं. तो ये देखो दोनों सेम है बिल्कुल. इज़ द इनएक्टिविटी शोन बाय, एस्टिवेशन इज़ द इनएक्टिविटी शोन बाय सम, सेम टू सेम. एनिमल्स ड्यूरिंग विंटर समर, ओनली दिस इज़ द डिफरेंस. यहाँ पर विंटर में हाइब्रेशन, एस्टिवेशन समर में. ओके, इनएक्टिविटी जो एनिमल्स शो करते हैं. नेक्स्ट, लॉन्ग आंसर इट इज फ्रॉग कैन लिव ऑन लैंड एंड वाटर बोथ. इट इज़ एन एम्फीबियन. हाउ फ्रॉग्स कैन लिव ऑन लैंड एंड वाटर? इट इज़ एन एम्फीबियन. एम्फीबियन है मतलब ज़मीन पे भी रह सकता है और पानी में भी रह सकता है. इट हैज़ स्ट्रॉन्ग बैक लेग्स. जो पीछे वाले लेग्स होते हैं ना, वो जंप करने के लिए होते हैं. टू मूव ऑन लैंड, ठीक है, और उसी में वेब्ड फीड होती है, उस वजह से तैर भी पाता है. ठीक है, ओके. क्या चीज़ याद रखनी है? पीछे वाले लेग स्ट्रॉन्ग है ताकि जंप कर पाए और फीड जो है वो वेब्ड है ताकि स्विम कर पाए, और वो एक एम्फीबियन है. ओके, नाउ अडेप्टेशंस ऑफ पोलर रीजन एनिमल. पोलर रीजन जहाँ पे बर्फ़ पड़ती है बहुत, वहाँ पर एनिमल्स कैसे रहते हैं? दे हैव अ थिक लेयर ऑफ फैट. उनके है ना बॉडी में इतना फैट होता है, जैसे हम सर्दियों में कोट पहनते हैं, जैकेट्स पहनते हैं, ये लोग कुछ नहीं पहनते क्योंकि इनकी जो बॉडी है उसी में ऐसा फैट का लेयर होता है जिसको ब्लबर कहते हैं. टू कीप देम वार्म. थिक फर ऑन द स्किन. देयर हैबिट हाइबरनेट. एंड वन मोर थिंग, दे हाइबरनेट. वो तो सो जाते हैं, बाहर ही नहीं निकलते. हम लोग भी सर्दियों में सो जाते हैं ना रज़ाई में घुस के, उसी तरह से. दे हाइबरनेट एंड बिकम्स इनएक्टिव इन द विंटर्स. नेक्स्ट, फीचर्स दैट हेल्प एरियल एनिमल्स टू फ्लाई आर देयर बोन्स आर लाइट एंड होलो. एरियल मतलब जो हवा में रहते हैं, जो उड़ते हैं, बर्ड्स, है ना. सो देयर बोन्स आर लाइट एंड होलो. उनकी हड्डियाँ बहुत हल्की होती है, ठीक है. स्ट्रीमलाइंड बॉडी शेप्ड. और उनका जो शेप है बॉडी का वो ऐसा होता है, बोट जैसा. बोट का कैसा शेप होता है? इसको कहते हैं स्ट्रीमलाइन. तो ये जो शेप है ना, इस वजह से वो इजीली फ्लाई उड़ पाते हैं. उसको जो उनके जो विंग्स हैं वो इस तरह से होते हैं कि वो हवा को काट सकते हैं ना. दे हैव विंग्स. विंग्स है इसलिए उड़ पाते हैं. बड़ा ईजी है ये तो. ओनली द टर्म यू हैव टू लर्न इज बोन्स आर लाइट एंड हॉलो एंड दे हैव स्ट्रीमलाइंड बॉडी. Next, some animals like dinosaur and dodo bird that are no longer seen on the earth are extinct. कुछ ऐसे एनिमल्स जो अब हम देख ही नहीं सकते कि कहीं है, ऐसे एनिमल्स हैं एक्सटिंक्ट, जो एग्जिट हो गए हैं. एग्जिट हो गए ना, एग्जिट हो गए, एक्सपोर्ट हो गए, यहाँ नहीं है हमारी अर्थ पर. द एनिमल्स दैट मे सून बिकम एक्सटिंक्ट. और जो एक्सटिंक्ट होने वाले हैं, बहुत कम रह गए हैं, उनको कहते हैं एंडेंजर्ड. डेंजर में है वो, है ना, एक्सटिंक्ट होने के तो एंडेंजर्ड. और वो कौन से हैं? इंडियन राइनोसेरस, टाइगर एंड जायंट पैंडा. ओके, हाँ,
Let's hear your question answers are. I hope you can do them. These are the questions. Next, briefly describe the different reasons that are affecting animals and their natural habitat. Here we have the answer for that. Here, hunting of animals is the, no, here we have the answer. It's answer F. It's answer F. Hunting कर देते हैं, ठीक है. Next, you can make points and then write down. Hunting, you can only write hunting, pollution and environmental changes. Okay, now turning to the next question. Children, actually no need to write this question, I omit it. Next we have our food, and that's we're going to do now. We have exercise at page 43. Fats are also called energy giving foods. Lemon and oranges contain vitamin C. We drink 8 to 10 glasses of water. Our body requires adequate rest. We get iodine from seafood. Eating in excess can lead to obesity. Next. Okay, here we have the circle the correct. It's the 5th chapter, class 4. This is food rich in carbohydrates, rice. Okay, बाकी सब में अलग अलग होता है carbohydrates. Green leafy vegetables are good source of this fiber. Next, which of these is a food rich in fats? Butter. This food item contains water. Cucumber. Spinach is rich in this mineral, iron. Bread, sugar, potatoes, water. Now, ये जो कार्बोहाइड्रेट्स है ना, ये बाकी सब में तो है लेकिन एक में नहीं है, तो ये हमें और जो है जो अलग है सबसे, उसे हमें अलग करना है ना. सो ब्रेड, शुगर, पोटैटो सब में कार्बोहाइड्रेट होती है लेकिन पानी में नहीं होती है. ओके, वाटर में नहीं होता है. नेक्स्ट, रिच इन प्रोटीन्स. प्रोटीन्स मीट में होता है, फिश में होता है एंड मिल्क में भी होता है. राइस में प्रोटीन नहीं होता, राइस में कार्बोहाइड्रेट्स होता है. रिच इन फैट्स. फैट्स घी, ऑयल, बटर. स्पिनच में नहीं होता, स्पिनच में पालक में मिनरल्स होते हैं. आयरन, कैल्शियम, ऑयल, आयोडीन. रिच इन मिनरल्स, तो ऑयल नहीं है, मिनरल्स में रिच. कैरेट्स, लेमन्स, ऑरेंजेस, सॉल्ट. रिच इन विटामिन्स. विटामिन्स इन सब में होता है, सॉल्ट में नहीं होता, सॉल्ट में मिनरल्स होता है. नेक्स्ट, रीराइट दिस सेंटेंसेस करेक्टली. वी कैन लिव विदाउट, नो वी कैन नॉट लिव. Next, minerals and vitamins are protective foods. We should eat a balanced diet. Follow healthy eating habits will make us strong and healthy. Next, match the column we have. Okay, refrigeration. Preserve करने के लिए होता है ना, refrigerator, फ्रिज में रखते हैं. Proteins. Build muscles बनाते हैं, proteins खाना चाहिए, muscles चाहिए बॉयज़ को. तो वायरसेस, चिकन पॉक्स हो जाते हैं वायरस से. बैलेंस डाइट, गुड हेल्थ. नो, व्हाट इज अ बैलेंस डाइट? इट्स अ फूड दैट कंटेन्स ऑल द 5 मिनरल्स, दैट इज कॉल्ड बैलेंस डाइट. नेक्स्ट, फूड्स दैट प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम डिजीज आर विटामिन्स एंड मिनरल्स. दे आर प्रोटेक्टिव फूड्स. प्रोटेक्ट करते हैं इसलिए प्रोटेक्टिव फूड्स हैं. पार्ट ऑफ फूड दैट हेल्प टू रिमूव वेस्ट थ्रू द डाइजेस्टिव सिस्टम, रफेजेस. रफेजेस होते हैं, रफेजेस मतलब हरी जो पत्तेदार कच्ची सब्जियां हम लोग खाते हैं, सैलड, वो सब. आपको पता है बच्चों, जब शेर का भी पेट खराब हो जाता है ना, तो वो भी घास खाता है, पता है. ये बहुत काम करती है जो रफेजेस होती है, ताकि पेट साफ़ हो जाए. शेर का भी कार्निवोर है लेकिन फिर भी वो कभी कभी घास खाता है जब उसका पेट खराब होता है. सीलिंग फूड इन कैंस टू प्रिजर्व देम इज कैनिंग. Okay, now we will do the question answers of this chapter, and here we have
What is a balanced diet? ये तो अभी बताया मैंने. A diet that contains enough amount of all the nutrients, water, dietary fibers is called balanced diet. ये याद रखना है, डाइट जिसमें सारा अमाउंट हो न्यूट्रिएंट्स का, वाटर का और फाइबर्स का, उसे हम बैलेंस डाइट कहते हैं. नेक्स्ट, नेम द मेन न्यूट्रिएंट्स फाउंड इन फूड. द मेन न्यूट्रिएंट फाउंड इन फूड आर carbohydrates, fats, protein, vitamins and minerals. List any 4 ways by which food is preserved. A few ways by which food is preserved are refrigeration, freezing, drying and canning. अच्छा, फ्रिज में रखना और रेफ्रिजरेशन हो गया है ना. ड्राइंग क्या होता है? कुछ आपने देखा होगा, जैसे हमारे घरों में मिर्ची या कुछ ऐसी सब्जियां होती है, उनको सुखा देते हैं, है ना, तो उसको कहते हैं, उससे भी उनको प्रिजर्व किया जा सकता है, उसको कहते हैं ड्राइंग. कैनिंग, किसी जैसे अचार डाल देते हैं ना, वो भी कैनिंग ही है एक तरह से. नेक्स्ट, why is it not advisable to eat too much of foods rich in fat? If we eat too much fat, it gets stored in our body and makes us unhealthy and we lead to obesity. हम मोटे हो जाते हैं अगर ज़्यादा फैट खाएंगे तो. Give 2 examples of each of food rich in. Now, fats, oil, butter and meat. Carbohydrates, rice, sugar, potatoes. Vitamins, vitamin C we can find lemons and oranges. Vitamin A we can find in the carrots. D in the sunlight. अच्छा, सनलाइट, सूरज की रोशनी में भी बैठना चाहिए. दूध हम पीते हैं ना, हमेशा धूप में बैठ के पीना चाहिए, ऐसे हमारी दादी वगैरह कहती थी. प्रोटीन्स, बीन्स, एग्स एंड मिल्क. मिनरल्स, स्पिनच, सी फूड, सॉल्ट. टेक अ स्क्रीनशॉट. Now, nutrients are the substance. How do nutrients help us? Nutrients are the substance present in food that makes us strong, healthy and gives us energy. Smart लगना है, strong और healthy बनना है तो हमें nutrients खाने हैं. They also help in building and repairing our body. Building और repairing में भी वो help करते हैं. चोट लग जाती जल्दी ठीक करते हैं. Healthy food हम खाते हैं तो. List the benefits of eating safe. Raw food such as fresh food, fruits, vegetables should be washed well before they are eaten. बहुत अच्छे से धोना चाहिए उनको. It kills germs when we cook food. पकाते समय तो germs भी मर जाते हैं. Remember, freshly prepared food is the safest for consumption. है ना, हमेशा ताज़ा बना हुआ खाना ही खाना चाहिए. Next, take a screenshot or you can write. Pause the video. Why are vitamins and minerals called the protective food? Vitamins and minerals help to protect our body from diseases and are thus called the protective food. अच्छा, protect कौन करता है? जो protective food होते हैं, विटामिन और मिनरल. तो विटामिन्स आपको पता है, विटामिन A, B, C, D, E, K, ये सारे important vitamins होते हैं. Write in brief the importance of the exercise and rest for our body. When we exercise, we allow our body to do these movements. Without exercise, our muscles will lose their ability to move. हम मूव नहीं करेंगे तो क्या होता है? जाम हो जाते हैं हम लोग. मशीन भी अगर नहीं चलाते हैं तो मशीन जाम हो जाती है, चलती नहीं है. तो इसी तरह से हमारी बॉडी है, अगर हम मूव नहीं करेंगे तो इट वुड बी जैम्ड. नेक्स्ट, वन मोर पॉइंट इज़ देयर. We need 7 to 8 hours of sleep every day. सोना भी बहुत ज़रूरी है. Sleep gives our body the best chance to relax. Mention a few good eating habits. Always wash your hands before and after meals. Chew the food well and do not hurry. Always eat a balanced meal. Okay? जल्दी जल्दी नहीं खाना है, चबा चबा के खाना है, वॉश हाथ धो के खाना है और बैलेंस्ड डाइट खाना है. List some uses of microbes. अच्छा, माइक्रोब्स कहाँ यूज़ आते हैं हमारे? जो छोटे छोटे कीटाणु होते हैं जो अच्छे होते हैं. सम माइक्रोब्स हेल्प इन कर्ड फॉर्मेशन. कर्ड, दही जमाने के लिए हम वो माइक्रोब्स को यूज़ करते हैं, है ना. पुराना दही डालते हैं, नया दही जम जाता है ना मम्मा, तो लैक्टोबैसिलस कहते हैं बेसिकली उस माइक्रोब को. सो सम हेल्प इन बेकिंग प्रोसेस. बेकिंग मतलब केक बन जाता है, इडली बन जाती है, उसमें हम येस्ट डालते हैं, है ना. सम हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फूड. खाने को पचाने के लिए भी हमारी इंटेस्टाइन में कुछ जर्म्स होते हैं. सम हेल्प इन डिकेइंग ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स. जब जो एनिमल्स मर जाते हैं तो उनको भी मतलब ख़त्म करते हैं, वो माइक्रोब्स ही होते हैं. नेक्स्ट, वाई इज़ इट दैट द डाइट नीड्स
ऑफ द पीपल डिफर. कुछ लोग अलग अलग डिफरेंस नीड्स कैसे होती है. द डाइट नीड ऑफ पीपल डिफर डिपेंडिंग ऑन देयर एज एंड काइंड ऑफ एक्टिविटी दे डू. जो वो काम करते हैं उस पर डिपेंड करती है. चिल्ड्रन नीड ईट मोर प्रोटीन्स एज दे आर स्टिल ग्रोइंग. बच्चों को प्रोटीन्स ज़्यादा खाना चाहिए. रिक्शा पुलर्स, जो रिक्शा पहले लोग ऐसे हाथ से खींच के ले जाते थे, उनके लिए नीड टू ईट मोर कार्बोहाइड्रेट्स एज दे डू नॉट लॉट ऑफ फिजिकल वर्क. एल्डरली पीपल, जो लोग थोड़े से ओल्ड हो जाते हैं, डू नॉट नीड मच मोर प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स फॉर देयर बॉडी रिक्वायर्स लेस एनर्जी. क्योंकि वो ज़्यादा काम नहीं करते ना, इसलिए उनको थोड़ा ये कम खाना चाहिए कार्बोहाइड्रेट्स को. ठीक है. So these are the question answers, children. You have take a screenshot and that would be easily you can learn them. Have a nice day and don't forget to subscribe the channel. And remember, in this COVID situation there is no need for you to get a tutor or you go to any tuitions. You can just watch my video. It would be helpful for you to learn. Okay, but if you need, you can do as you like. Have a nice day, kids. In the next video I will post the 6th and 7th chapter of science, class 4.